Today we are going to start with the working capital management. For production process and regular activities of business required mainly two types of capital, fixed capital and working capital. Now what is fixed capital? The capital which is required for fixed expenses of business is known as fixed capital. Whereas working capital is required for day-to-day operations of the business. Okay. So let us start with the working capital management. First, we start with the meaning of working capital. Working capital is money available to company for day-to-day activities और day-to-day operations. जैसे रॉ मटेरियल परचेस करना है, सेल करना है, उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो सभी आपको वर्किंग कैपिटल के अंडर दिखाने हैं. ओके. वर्किंग कैपिटल क्या शो करता है कि कितना इमीडिएट पेमेंट का एफिशिएंसी है, लिक्विडिटी क्या है बिजनेस का, ये सब शो करेगा वर्किंग कैपिटल. There are different types of working capital. First one is permanent working capital and temporary working capital. Permanent working capital मतलब जो हमेशा कंपनी में लगने वाला कैपिटल है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, उसे बोलेंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल. जो कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए लगता है या टेम्पररी काम के लिए लगता है, उसे बोलेंगे टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. Next one is gross and net working capital. What is gross working capital? Gross working capital is nothing but total of current assets, that is called as gross working capital. Whereas net working capital means current assets minus current liabilities equal to net working capital. Next is positive working capital and negative working capital. What is positive working capital? If the current assets are more than current liabilities, it is called as positive working capital. And if the current liabilities are more than current assets, it is called as negative working capital. Then next one is reserve working capital, which is kept as a reserve. In case of emergency only it can be used. Regular working capital, जो working capital regular activities के लिए use होता है, उसे बोलते हैं regular working capital. सीजनल वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल पर्टिकुलर सीजन के लिए ही यूज होता है, उसे बोलते हैं पर्टिकुलर सीजन में रिक्वायर्ड होता है, उसे बोलते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल. देन नेक्स्ट वन इज स्पेशल वर्किंग कैपिटल. स्पेशल कुछ चीजों के लिए, कुछ सिचुएशन के लिए ही अगर वर्किंग कैपिटल लगेगा तो उसे बोलेंगे हम लोग स्पेशल वर्किंग कैपिटल. Now let us move on the components of working capital. Which are the components of working capital? There are mainly two components of working capital: current assets and current liabilities. What is current assets? Current assets includes stock of raw material, stock of work in progress. What is work in progress? जो जिसके ऊपर आधा प्रोसेसिंग हुआ है और आधा नहीं हुआ है, मतलब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. And third one is stock of finished goods. So three types of stock is there: stock of raw material, stock of WIP, and stock of finished goods. Then inventory. Inventory means stock. We have already seen that there are three types of stock: stock of raw material, stock of WIP, and stock of finished goods. Then prepaid expenses. Any expenses paid in advance or advance payment of any salary is included here. कैश और बैंक बैलेंस एंड सन्ड्री डेटर्स. उसके बाद लास्ट आइटम है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट. अगर ये डिपॉजिट एक साल के लिए है तो ही यहाँ पे आएगा. अगर ये डिपॉजिट एक साल के ज्यादा के समय के लिए है तो ये करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं होगा. देन मेन कंपोनेंट में दूसरा आएगा करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट. रिमेंबर दैट अगर नॉर्मल बैंक का बैलेंस है तो वो जाएगा करंट एसेट्स में, whereas ओवरड्राफ्ट लिया है बैंक से तो वो जाएगा करंट लायबिलिटीज में. शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, अगेन अगर ये बोरोविंग एक साल से कम समय के लिए है तो ये यहाँ पे आएंगे. प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ. शॉर्ट टर्म लोन्स, अगेन एक साल के कम समय के लिए लोन रहेगा तो वो यहाँ पे आएगा. Let us move on the factors affecting working capital. There are different factors which affect the working capital requirement of the company. Number one is nature of business. कौन से टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो उसके ऊपर भी कितना वर्किंग कैपिटल आपको लगेगा वो इम्पोर्टेंट है.
यानी अगर आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, जैसे अगर आप डायमंड का बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहेगा क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा है। लेकिन अगर आप सेफ्टी पिन्स बनाने का बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा। नंबर 2 इज साइज ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा आपका बिजनेस का साइज है उतना आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। अगर बिजनेस का साइज कम है तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर आपका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा है, जैसे अगर आप शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में है, तो वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है और उसके बाद उसका सेल होगा। जब तक सेल नहीं होगा तब तक वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आपका कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है प्रोडक्शन का तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अगर कंपनी ग्रोथ या एक्सपांशन के बारे में सोच रही है तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। पर टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कंपनी वो गुड्स जो परचेस कर रही है कंपनी वो क्रेडिट बेसिस पे मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। लेकिन अगर जो गुड्स वो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं वो कैश बेसिस पे परचेस कर रहे हैं तो फंड्स की जरूरत ज्यादा होगी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली अपोजिट फॉर सेल्स, अगर कंपनी कैश सेल्स कर रही है ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। लेकिन वही सेल्स अगर क्रेडिट बेसिस पे हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका बढ़ेगा। देन कंडीशंस ऑफ सप्लाई, ऑर्डर देने के बाद अगर इमीडिएटली सप्लाई या रॉ मटेरियल हमें मिलता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा क्योंकि हम लोग ऑर्डर कम चीजों का दे सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर देने के बाद गुड्स का सप्लाई होने में टाइम लगता है तो वी हैव टू स्टोर दैट गुड्स एंड आवर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज। मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट में इजीली कंडीशन ऐसी है कि इजीली हम लोग गुड्स बेच सकते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा क्योंकि जितना हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बार बार सेल कर सकते हैं और हमें पैसा वापस मिल सकता है इमीडिएटली। लेकिन अगर मार्केट कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम है और हम लोग इजीली सेल नहीं कर सकते हैं, सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सच केस वर्किंग कैपिटल हमारा बढ़ेगा। ओके, दीज आर द some of the items which or factors which affect the working capital requirement. Now when we are talking about the formula of working capital or we are saying that accounting terms में अगर आपको working capital explain करना है तो simple formula क्या है उसका, working capital equal to current assets minus current liabilities, working capital equal to current assets minus current liabilities। यही हमें अभी वर्टिकल फॉर्मेट में फॉर्मूला देखना है। जब हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं तो ये इसके लिए हमें ये फॉर्मेट जरूरी है। The simple formula is current assets minus current liabilities. But when we are talking about the current assets, what's included in current assets? Number first is stock. There are three types of stock: stock of raw material, stock of WIP, and stock of finished goods. In first column, we have made the total of these three types of stock and write in the second column. Next current asset is debtors. We can show the debtors at selling price or at cost price. Number 3 is cash and bank balance. Number 4 prepaid expenses and number 5 bills receivable. इनमें से स्टॉक, डेटर्स एंड कैश बैलेंस हर एक प्रॉब्लम में आपको दिया जाएगा, बट प्रीपेड, बिल्स रिसीवेबल एंड करंट लायबिलिटी एंड बट प्रीपेड एंड बिल्स रिसीवेबल आपको हर एक प्रॉब्लम में नहीं दिए जाएंगे। The total of all these things are called as total current assets or gross working capital. उसमें से हमें करंट लायबिलिटीज को लेस करना है। अभी करंट लायबिलिटीज क्या क्या है उसमें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज यानी रोमन 1 माइनस रोमन 2, वी गॉट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अभी हमें आगे जो सम्स करने हैं हर एक सम इसी फॉर्मेट में हमें करने हैं। देन लेट अस मूव टू द वर्किंग कैपिटल साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल। कैसे होता है ये साइकिल? स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं कैश और बैंक बैलेंस से। कैश से हम लोग परचेस करते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से हम लोग रॉ मटेरियल पे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं और उसका कन्वर्शन होता है सेमी फिनिश गुड्स में।
यानी अभी तक पूरा प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट नहीं किया है, फिर उसका कन्वर्शन पूरा प्रोडक्शन होने के बाद होता है फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स या तो हम लोग इमीडिएटली बेचते हैं फॉर कैश बेसिस, तो हमें इमीडिएटली वो कैश में कन्वर्ट करके मिल जाएगा, या अगर इमीडिएटली पैसा नहीं मिला तो वो डेटर्स में कन्वर्ट होगा, और डेटर्स बिल्स एक्सेप्ट करेंगे बिल्स रिसीवेबल, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल में, और बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में अगेन हमें मिलेगा पैसा। So this is a cycle that is it is called as working capital cycle. From next lecture, we are starting with this problem on working capital. So we have to learn with this formula of working capital. ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है वो फॉर्मेट आपको अभी अच्छे से करके रखना है, so that it will be easy to understand how to calculate working capital.